हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमूराबी टैबलेट एक सीरीज़ चला रही है कोर्ट्स इन लॉकडाउन। इस सीरीज़ में हम कोर्ट्स जो बॉम्बे के वहाँ जाते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट सर, वहाँ के सीनियर एडवोकेट्स, उनको हम मिलते हैं और उनसे हम जानकारी लेते हैं कि किस तरह से आज कोर्ट चल रहा है, क्या सेफ्टी मेजर्स है, किस तरह का एक माहौल है कोर्ट में। तो इसी सिलसिले में हम आए हैं अभी विक्रोली कोर्ट में। और Hammurabi Tablet would like to thank Advocate Rajesh Anantrao More, who is the president since last 4 years of Borivali Bar, for supporting this cause and the series of Court. तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि किस तरह से क्या माहौल है विक्रोली कोर्ट में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, इस वक्त हम हैं विक्रोली कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के दुबे सर के साथ और सर से कुछ जानकारी लेंगे। तो सर, ये जो पैंडेमिक सिचुएशन फ़िलहाल चालू है, इसमें एक क्या भविष्य दिख रहा है आपको एडवोकेटों का, और किस तरह के प्रॉब्लम्स क्या हैं, इस पर कुछ विचार रखेंगे आपके। See, actually, after this lockdown began in the last week of March, and thereafter that time we expected that it may be for a month or 2 months. Now, since it is relentlessly it is going on, and the situation which we have been seeing is worsening, and due to that a lot of advocates practicing in the court are affected, and they are in a financial distress condition. Now, for initial 1 or 2 months everybody has a sustainability, but because of non accessible to the courts and physical hearing, it has become very difficult for the junior lawyers, even a lawyer who are above the 10 years, or sometimes there are few lawyers even in seniors also are equally suffering from a financial problem. Therefore, we have seen the system in the court and the guidelines which are being issued by the MHA, and that is being followed, but because of that and because of that transportation problem in the city, that it has become another difficult point for lawyers to reach to the courts. And even after that it is a very difficult, since there is no physical hearing, and it is rarely very less work of remand in the magistrate courts, and even in higher courts, sessions court and high court, honorable high court, about the VC, that is also not functioning properly, because the digitally that a lot of problems are there. We have got it, we are not getting it very clear situation, frequent disconnection of the line, disappearances of the line, lot of technical problems are moving. Therefore, to avoid all these things, it would be my suggestion that if every centers gets 2 or 3 courts physical hearing, by maintaining all social distancing and all magnitude measures which requires to be taken for the safety and well equipment should be allowed, at least where the maximum advocate can get a work and they can at least maintain themselves and their family, because the advocate do not have any other source of income. And this from press and other media we have been seeing in the part of Maharashtra, it has been reported that the advocates are going for some other businesses like tailoring, like vegetable selling. This has been reported. These are the reporting in Times of India, which I am just saying. Yes, sir. It is shocking to us that such a learned advocates, after a study and having a noble profession, are going to such a situation, which is very shocking and very startling to me. Therefore, sir, my suggestion is, if that the higher judiciary or the authorities considered for the grievances of advocates, that they should be allowed at least in a minimum numbers to appear in the courts to make a submissions physically, so as to maintain themselves and their dependents and their stock members. Sir, any kind of measures which you would say, to improve the some different things to be laid in our profession for coming future, कुछ
आपके दिमाग में मतलब आपको See कहना है? that these things are there, that we need a cooperation. For all these things, it is to betterment and upgrade the situation. We need a cooperation from our Bar Council of Maharashtra and Goa, from the BCI and from the judiciary also. Apart from that, the government should also look into the grievances of advocate, because the government is ignoring this particular field of advocates who are very important and relevant for dispensation of justice for the society, that this particular fragment is being will take it is kept aside, whereas the government is there taking care of other people's leaving aside the advocates. So therefore, my request is to the government, to the judiciary and to our councils, bar councils also, that they should look into grievances of our advocates, because junior advocates, lot of junior advocates are there today, they are sufferers. They do not have sufficient means to live, to maintain their children themselves, or there is a problem for payment of their fees, payment of their electricity bills. Lot of all these essential things are being left over because of there is no source of income. सर ऐसा आपको लगता है कहीं कि समझो अगर दोनों एडवोकेट राजी हैं कोई कोर्ट केस में, मे बी मोस्टली इन द प्राइवेट केस आई एम स्पीकिंग, कि बोथ आर रेडी टू गो ऑन विद द ट्रायल, तो उस तरह से कुछ ट्रायल कंडक्ट होके खत्म हो सकते हैं? That is possible if both advocates are ready and if the court also permits that, and the cops are also there to assist. Sometimes what happen, even in a private matter also we need a police helps. In a private matter also we need a police help, we need a court helps also. If that helps we are getting from that, and both the advocates are ready and both the parties are ready, there is no difficulty, we can go on by following all the procedures and all the administrative order issued by the concerned authorities. तो दुबे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ आए, आपको अपने हमें मौका दिया आपको इंटरव्यू करने का, और आपके विचार आपने रखे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी है। Thank you. अभी मैं हूँ विक्रोली कोर्ट के और एक सीनियर सर एडवोकेट सावंत सर के साथ, और उन्हें भी मैं पूछना चाहूँगा कि सावंत सर, ये जो अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, कोर्टें पूरी तरह से चालू नहीं हैं, तो एक एडवोकेट फ्रेटर्निटी का क्या भविष्य आपको लग रहा है इसमें, कि क्या होगा, मतलब क्या होगा इसमें सब? अभी इसमें अभी देखो, यहाँ विक्रोली बार एसोसिएशन है, यहाँ मोर देन 300 एडवोकेट्स आर प्रैक्टिसिंग हियर। हाँ जी। तो उसमें बहुत से जो है सीनियर एडवोकेट्स है, जूनियर भी है। जो जूनियर एडवोकेट्स है उनका तो बहुत कंडीशन ख़राब है, क्योंकि यहाँ कोर्ट में फंक्शनिंग कोई नहीं चलता है। ओनली अर्जेंट मैटर्स आर गोइंग ऑन। अर्जेंट मैटर्स मीन्स रिमांड फॉर द बेल पर्पज, रिमांड, रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी और फाइलिंग ऑफ द 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ओनली दीज वर्क्स आर गोइंग ऑन इन विक्रोली कोर्ट। सो बाकी तो कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि रेगुलर ट्रायल तो चलता ही नहीं है। और जो एडवोकेट जो है, जो जूनियर है और सीनियर भी, तो उनका टोटल डिपेंड्स, दे आर टोटली डिपेंड्स अपॉन देयर प्रैक्टिस ओनली। देयर इज़ नो एनी अदर अर्निंग सोर्स टू द एडवोकेट्स, क्योंकि एज पर प्रोफेशनल एक्ट, एज पर एडवोकेट्स एक्ट, वी कैनॉट do any other earning apart from our this lawyers practice. So there is no any other income source to the advocate. तो उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है अभी, क्योंकि उनको काम ही नहीं है, 4-5 महीने से कुछ काम भी नहीं है, तो कंडीशन बहुत ख़राब है। तो इसके लिए कोर्ट में जो ट्रायल मैटर्स जो है, समझो प्राइवेट मैटर्स है, SW केसेस, उसमें जो अगर इफ़ द अदर पार्टी इज़ रेडी, अदर एडवोकेट इज़ रेडी टू प्रोसीड द मैटर, तो ऐसे मैटर्स अर्जेंट में लेने के लिए कोई हरकत नहीं है।
इसके लिए कोर्ट ने अलाउ करना चाहिए। सावंत सर, आपको लगता है कि और कोर्टें बैठनी चाहिए? मतलब आज जितने आ रहे हैं उससे एक दो कोर्ट कम से कम ज़्यादा आनी डेफिनेटली चाहिए। वो तो होना चाहिए, क्योंकि देखो अभी मैं लास्ट वीक में मैं थाना कोर्ट में था, जब भी वहाँ डीजे के पास मीटिंग किया तो वहाँ रोज़ एक ही मैजिस्ट्रेट आते थे सिर्फ रिमांड के लिए। वो इतना बड़ा वो सेंटर है। तो फिर वहाँ के एडवोकेट ने जाके डीजे से मीटिंग किया और उन लोग को बताया कि मिनिमम 2 मैजिस्ट्रेट शुड बी देयर फॉर दिस अर्जेंट वर्क। तो ऐसे यहाँ विक्रोली में भी ये भी 6 जजेस है, तो यहाँ भी होना ज़रूरी है कि कम से कम 2-3 तो मैजिस्ट्रेट आना जरूरी है। 50% तो एटलीस्ट चालू होना जरूरी है। मतलब सर, आपको ये लगता है कि अगर कोर्टें बढ़ेंगी, समझो एक की जगह 2 या 3 कोर्ट का फंक्शनिंग करेंगी, तो वकीलों का भी काम बढ़ेगा उसमें? डेफिनेटली काम बढ़ेगा, क्योंकि 6 पुलिस स्टेशन है तो रिमांड भी ज़्यादा है इधर। तो एक ही मैजिस्ट्रेट से होता नहीं है, वो कंप्लीट होता नहीं है, और वकील भी अपीयर नहीं होता है बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। तो अगर 2-3 मैजिस्ट्रेट होंगे तो दे कैन मेंटेन द सोशल डिस्टेंसेस ऑल्सो टू द एडवोकेट्स एज वेल एज लिटिगेंट्स। ओके सावंत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके विचार रखे, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। अभी मैं हूँ विक्रोली एमएम कोर्ट के प्रेसिडेंट सर एडवोकेट अरुण उपाध्याय सर के साथ, और उनसे हम जानकारी लेंगे कि किस तरह से कोर्ट चल रहा है। तो अरुण जी, हमें आप बताइए कि आज के दिन में कोर्ट कैसे चल रही है? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ टोटल 6 कोर्ट है और 6 पुलिस स्टेशन है, एक एक कोर्ट को दिया हुआ है, और 138 के लिए 3 कोर्ट है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ जैसा कि हाई कोर्ट के सर्कुलर हैं आए हुए हैं कि एक दिन में एक मजिस्ट्रेट आते हैं। आज हमारे यहाँ 49 कोर्ट का टर्न है, टेकवानी साहब जो है आए हुए हैं, और 6 कोर्ट में से केवल एक कोर्ट अटेंड होती है। और वो अब फाइलिंग के लिए जो है हमको बॉक्स में डालना पड़ता है, और फिर वो हिसाब से वो करते हैं। सबका बनाया गया है सब सिस्टम वो हिसाब से। और रह गया ये कोरोना के बारे में प्रिकॉशन, तो उसके बारे में यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। नीचे सैनिटाइजर है, हवलदार है नीचे, और वो लिटिगेंट को तो ऊपर भेजते ही नहीं है, लेकिन जो एडवोकेट है उनको भी सही ढंग से सैनिटाइज करके और उनका पूरा नाम पता एड्रेस लेके ये भेजा जाता है। और जितनी प्रिकॉशन हो सकती है हमारे एडिशनल सीएम साहब के डायरेक्शन से, गनी वाले साहब के डायरेक्शन से सब ले रहे हैं, और सब सही ढंग से चल रहा है। ओके। और सर, जो रिमांड आता है तो उस रिमांड में किस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का रहता है? मतलब कैसे लाते हैं पुलिस, और क्या होता है सोशल डिस्टेंसिंग रिमांड में? ऐसा है कि एक बार एक रिमांड में, मैं तो ओकेजनली आता हूँ कोर्ट में, लेकिन एक रिमांड में मैं आया था यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छी ढंग से लेते हैं। मजिस्ट्रेट साहब उनसे पूछताछ करते हैं कि आपने इनका पॉजिटिव निगेटिव टेस्ट लिया है कि नहीं लिया है, उसके बाद में मेडिकल कराया है कि नहीं कराया है, उसके बाद में फिर वो रिमांड लेते हैं। और रिमांड लेने के बाद में जो उचित निर्णय होता है वो देते हैं अपने हिसाब से। और वो आरोपी को भी ऊपर लेके आने की वजह से सैनिटाइज किया जाता है, उसको भी हैंड वॉश करवाया जाता है अच्छे ढंग से, और सब प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उनको कोर्ट के सामने उनको हाजिर किया जाता है। और फिर साहब जो है अपने हिसाब से उनको निर्णय देते हैं। और मोस्टली जो सीवियर केसेस नहीं है उसमें बेल का प्रोविजन कर देते हैं उनको, और जो सीवियर केसेस हैं उसमें एज पर द प्रोसीजर ऑफ लॉ दे आर रिमांडिंग। ओके। और सर, कंपेयर टू प्री कोविड आज क्या संख्या है लोग एडवोकेट लोगों की हमारे आने पे? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ टोटल स्ट्रेंथ 305 की है एडवोकेट। 305 में मोस्टली यहाँ पे जो लोकल एरिया में रहने वाले हैं एडवोकेट, मुश्किल से 50-60 एडवोकेट वो आते हैं। और वो आते हैं, उनका जो रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी का है, जो गाड़ियाँ जब्त की है पुलिस ने कोविड-19 में, और रिमांड जो है थोड़े वो अटेंड करते हैं। और बाकी जो एडवोकेट फ्रॉम आउटसाइड, जिसके ट्रेन से आ सकते हैं या बस से आ सकते हैं, वो नहीं पहुंच पाते हैं, और वो
अपने किसी भी जूनियर के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से वो अपना काम करके लेते हैं। लेकिन एक ये इसके हिसाब से जो है पोजीशन बहुत ही एडवोकेट लोग की ख़राब है, और उसके बारे में हमारे बार एसोसिएशन ने एक एडवोकेट दीपक पाइकराव करके थे, उन्होंने 1 लाख रुपया मदद की थी एडवोकेट को। उसमें से हमने 30 से 32 एडवोकेट लोग को, इवन हमने टाइपिस्ट को भी, जो हमारे यहाँ अथराइज टाइपिस्ट हैं हाई कोर्ट के, उनको भी हमने मदद की। अच्छा, और 3-3 हज़ार रुपया एक बार दिए थे इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल। ओके, और अभी जो है हमने हमारे बार काउंसिल से, हमारे बार एसोसिएशन से हमने निर्णय लिया, सब लोगों ने मिल के, मैनेजिंग कमेटी ने, और अनीस भाई के, एक अनीस मुजावर करके एक्स प्रेसिडेंट थे, उनके नेतृत्व में हमने स्क्रूटिनी कमेटी बनाई कि कौन से वकीलों की पोजीशन कैसी है। वो हिसाब से हमने 25 से 26 एडवोकेट लोग को 5-5 हज़ार रुपये की मदद की है। 2.5 लाख में से 5-5 हज़ार रुपये की, अभी तक हमारा 2.5 लाख का फंड हमने वो किया था, अलाउ किया था, उसमें से 5-5 हज़ार की मदद की है 25 एडवोकेट को, बाकी फंड वैसे पड़ा हुआ है। और आगे भी भविष्य में ऐसा कुछ होगा तो हम वो मदद करने के लिए उनको तैयार हैं। लेकिन अब जैसा कि पूरे देश में रिकवरी रेट कोविड-19 की 71% है और डेथ रेट 2% है, तो वो हिसाब से थोड़ा वकीलों की उसमें काम में, कार्य पद्धति में थोड़ा सुधार आ रहा है। और ईश्वर करे कि ऐसा जल्द से जल्द हो, ताकि हमारे जो एडवोकेट मित्र हैं, और सबसे बड़ी चीज़ बात यह है कि बार काउंसिल ऑफ गुजरात ने ये अलाउ किया कि एडवोकेट कोई दूसरा धंधा भी कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, हमारे बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा ने इस तरह का प्रोविज़न नहीं किया है। तो मैं आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह का वो कोई प्रोविज़न कर सकते हैं तो करें, ताकि किसी भी, ये तो आपदा अभी चली गई या जाने वाली है, लेकिन आने वाली आपदा के लिए, ताकि हमारा एडवोकेट वर्ग जो है सुरक्षित रह सके। ओके। और सर, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के लिए, जैसे अभी मैंने सुना है कि दिंडोशी कोर्ट में एडवोकेट साहब और जज साहब के बीच में एक्रेलिक शीट्स रखे हुए हैं, तो उस तरह का कोई व्यवस्था अपने यहाँ कोर्ट में है यहाँ पे अभी फिलहाल? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी तक तो कोई आर्गूमेंट, जब से 21 मार्च से लॉकडाउन हुआ है, आज तक कोई भी आर्गूमेंट कोर्ट में नहीं हुआ है। क्योंकि इसमें एक पक्ष, आर्गूमेंट तभी होगा जब दोनों पक्ष हाजिर रहेगा। अब आप तो जानते हैं अच्छी तरह से, आप खुद एडवोकेट रह चुके हैं, एडवोकेट हैं, आपको ये मालूम है कि यदि एक पक्ष विक्रोली सेंटर से रहेगा तो दूसरा पक्ष कोई अन्य सेंटर से रहता है, और वो उस पक्ष को आने के लिए यहाँ पे तकलीफ होती है। जब उस पक्ष का वकील नहीं आ पाएगा यहाँ पे, तो आर्गूमेंट कैसे हो पाएगा। और अब केवल हमारे 6 के 6 सेंटर, यहाँ पे विक्रोली सेंटर में केवल जो है रिमांड का काम होता है, और जो रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी रहती है उसका काम होता है। और जैसा कि आपको हाई कोर्ट का सर्कुलर है, आपको भी अच्छी तरह भली बात याद है कि किसी भी तरह का आप एडवर्स ऑर्डर नहीं निकाल सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, और लिमिटेशन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो ऑर्डर्स हैं, दैट वेरी वेल नोन टू ऑल ऑफ अस। तो ये हिसाब से थोड़ा एडवोकेट भी अपने को प्रिकॉशन में रख रहे हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पे रह रहे हैं, अपने परिवार के साथ में रह रहे हैं। हाँ, थोड़ी उनके फाइनेंशियल उनकी पोजीशन थोड़ी इसमें थोड़ा डगमगा जाती है, उसके लिए हम भरसक प्रयत्न करते हैं हमारे सभी यहाँ के मित्रों के साथ में कि उनको हम मदद करें, और आगे भी हम करते रहेंगे। और हम ये चाहते हैं कि ये जो आपने इस तरह का प्रोग्राम शुरू किया है, उसके माध्यम से यदि हम लोगों वकीलों की आवाज़ यदि उच्च अधिकारी वर्ग तक जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और जैसा कि हम न्यूज़ में देखते हैं, वर्ड इन फैक्ट क्या है वो तो हमें भी ना मालूम, जैसा कि यूपी गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपया एडवोकेट के लिए अलाउ किया है। अभी ये खबर में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है हमें नहीं मालूम उसका। तो उसी तरह से मैं ये चाहता हूँ और ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से कि हमारे एडवोकेट वर्ग को भी पूरे महाराष्ट्र में किसी न किसी प्रकार की राहत दी जाए, ताकि वो अपना ये प्रोफेशन जो है जारी रख सके और अच्छे ढंग से समाज में जीवित रह सके। उपाध्याय सर, आपका हम बहुत बहुत आभारी हैं। आपने आपके अच्छे विचार रखे और सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपका विक्रोली बार ने एडवोकेट जो है, जो अपने स्क्रूटिनी कमेटी बना के 3-3 हज़ार रुपया दिया,
ये एक बहुत, फिर उसके बाद 5,000 रुपये दिया। फिर 5,000 भी आपने दिया। तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि एक बार भी जो अपने 3,000 रुपया था वो एडवोकेट दीपक पाइक राव के फंड से था, ओके, और जो 5,000 रुपया था हमारे बार बार एसोसिएशन के की तरफ से फंड था। से और इसमें हमारी पूरी मैनेजिंग कमेटी और एक्स प्रेसिडेंट अनीस मुजावर साहब, इसका बहुत ही बड़ा रोल है। और यहाँ पे सभी जो सीनियर एडवोकेट हैं, दे ऑल आर कोऑपरेटिव, और यहाँ पे किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो उसका सब लोग मिल के सामना करने के लिए तैयार है। अभी राहुल साहब, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आपने जो इस प्रोग्राम को चालू किया है, इस मोटो को चालू किया है, इसको और बढ़ाएं, अधिक से अधिक लोगों के सामने लेके जाएं, ताकि हमारे दूसरे वर्ग हैं उनको मालूम पड़े कि एक एडवोकेट की क्या स्थिति है, और उस पर राज्य सरकार भी विचार करे। यही आशा के साथ में धन्यवाद। धन्यवाद।